Hello students, welcome to Shaurya Learning. Hope you all are doing good. So in this section students, we are going to learn about the capital gains tax. After learning about the personal taxation, now I am going to discuss about the capital gains tax. What do you mean by capital gain tax? So every individual apart from the personal tax has to pay the capital gain tax on any chargeable gains. What do you mean by chargeable gain? Any gain on the value of the asset held, then you have to pay the capital gain tax. In small it is called generally as CGT. So स्टूडेंट्स हम कैपिटल गेन टैक्स क्यों पे करते हैं? बिकॉज हमने जो भी वैल्यू हमारे पास है, जो भी एसेट हमारे पास है, उसकी अगर वैल्यू इंक्रीज होती है एंड देन व्हेन वी रियलाइज दैट वैल्यू देन वी हैव अ gain, and then that gain is chargeable, and on that chargeable gain the government levy the capital gain tax, right? Okay, so class अगर मैं कहूँ कि I have a asset of 5 years, so मेरे को उन 5 years में उस asset की value पे tax नहीं pay करना है. The assessment year, the financial year I am selling that asset, I am realizing that profits or the gains, in that year I have to pay the capital gain tax, right? Okay, so now we are aware of what is capital gain tax and when do we have to pay that capital gain tax. Okay, now we don't have to pay the capital gain taxes on each and every item. There are some items which are exempted from the capital gains or the chargeable gains, right? For example, if the home in which you are residing, your residential address, your private home do not come under your capital gain tax. Okay, अगर आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर को की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है then you don't have to pay, and if you sell that home, the home in which you are residing, then you don't have to pay any capital gains. हाँ, अगर आपके पास अपना एक घर है, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आप उस वैल्यू इंक्रीज हुई है, then you have to pay the capital gain tax on that property but not on your private home, right? Similarly on your private car, अगर जनरली आप देखेंगे तो प्राइवेट कार्स की जो वैल्यू है डिग्रेड ही होती है, कभी इंक्रीज नहीं होती है. बट सपोज इफ देयर इज एनी विंटेज कार, एनी लग्जूरियस कार, देन यू डोंट हैव टू पे द कैपिटल गेन टैक्स ऑन योर प्राइवेट कार्स. ओके, नेक्स्ट इज योर फॉरेन करेंसी ऑब्टेन्ड फॉर पर्सनल यूज़. तो आपने जितनी भी फॉरेन करेंसी, सपोज आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं, आपने $100 एक्सचेंज किए हैं एंड यू हैव जस्ट स्पेंड योर $80, देन दोज $20 दैट यू हैव नाउ विद यू, that is for your personal use. That means if the value of that foreign currency, अगर आपकी डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होती है, then you don't have to pay that taxes on those gains. ठीक है? ओके, अब मैं बात करूँगी किसी मूवेबल एसेट्स को. फॉर एग्जांपल आपकी ज्वेलरी है, फर्नीचर है, एंटीक्स हैं, जिनकी वैल्यू मे बी दे कैन इंक्रीज ड्यूरिंग द टाइम, सो यू डोंट हैव टू पे द टैक्सेस अप टू द लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीज़. ठीक है, सो देयर इज अ लिमिट. अगर वो गेन्स 1 लाख रुपीज़ तक के, देन यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. इफ इट इज मोर देन दैट, देन यू हैव टू पे द कैपिटल गेन टैक्स. सो दिस इज ऑन द मूवेबल एसेट्स. ओके, एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और फिक्स्ड इंटरेस्ट स्टॉक्स, किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की अगर वैल्यू इंक्रीज होती है या फिर कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट स्टॉक है जिसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर उस स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होती है, देन यू डोंट हैव टू पे द टैक्सेस, कैपिटल गेन टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑन दैट सिक्योरिटी. सो दीज आर द सम पॉइंट्स: प्राइवेट रेजिडेंस, प्राइवेट कार, फॉरेन करेंसी ऑब्टेन्ड फॉर पर्सनल यूज, then your government securities and your movable assets of gain up to 1 lakh rupees. So these are the things that are exempted from the capital gain tax generally in almost all countries. Fine. So capital gain क्या होता है? That is the selling value minus your purchase value. ठीक है, तो जिस वैल्यू पे आपने सेल किया है उसमें से हम माइनस करेंगे हमने कितने पे परचेज किया था, तो डिफरेंस बिटवीन द टू इज योर गेन. इफ इट इज अ गेन, इफ इट इज प्लस पॉजिटिव वैल्यू, देन दिस इज योर गेन. इफ इट इज नेगेटिव वैल्यू, देन इट इज अ लॉस. ठीक है, तो स्टूडेंट्स में एज आई सेड हमारा लॉस भी तो हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि हमारे इन सब आइटम्स पे और जितनी भी हमारी
चार्जेबल गेन्स वाली चीज़ें हैं उन पर गेन ही और लॉस भी हो सकता है। तो क्या हमें गवर्नमेंट वापस पे करेगी लॉस के लिए? नो। सो देयर इज एन formula that your capital losses can be offset with your capital gains। ठीक है, ऑफसेट कैसे करेंगे? अगर हम सेम फाइनेंशियल, नॉट फ्रॉम अनदर एनी अदर फाइनेंशियल, इफ वी आर talking about the same financial year, so if you have a capital gain of 2 lakh rupees and you have a capital losses of 50,000 on any other asset, then you can offset this loss with your gains and you have to pay on just 1.5 lakhs, not 2 lakhs। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने लॉसेस को अपने गेन के साथ ऑफसेट कर दिया, और तो हमारे पास अब जितना गेन बचा है, जिसके पास कोई प्रॉफिट लॉसेस भी नहीं है, then you have to pay the tax, capital gain tax on that remaining amount। Students, as I said कि हमारा जो कैपिटल गेन वो कैलकुलेट होता है कि आपने जो अपना सेलिंग प्राइस माइनस योर परचेज कॉस्ट और परचेज प्राइस। सो आप लोग कहेंगे कि हमने एक प्रॉपर्टी थी वो 20 lakhs की परचेज की थी 10 years बैक, बट ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड मेनी अदर फैक्टर्स उसकी वैल्यू आज 50 लाख रुपीज़ हो गई है। तो क्या आपको उस जो अगर गेन है 30 lakhs का, क्या आप उस पूरे 30 lakhs पे टैक्स पे करना है? तो बहुत सारा टैक्स हो जाएगा। नो स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव टू पे द टैक्सेस ऑन दैट 30 lakhs। नाउ आई विल टेल दैट हाउ डू यू कैलकुलेट दिस परचेज कॉस्ट। आपने कोई प्रॉपर्टी 20 lakhs की परचेज की थी, उस रेट के सर्कल रेट के अकॉर्डिंग उस वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज क्या है? सपोज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज 40 lakhs है। ठीक है, उसमें आपका इन्फ्लेशन भी आ जाता है क्योंकि आपके जो डे बाय डे आपका इन्फ्लेशन रेट जो है इंक्रीज हो रहा है, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स भी आप अलाउ करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद आपकी वैल्यू है जो प्रॉपर्टी की 43 lakhs आ रही है। कितना रेट चल रहा है हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट? around 5 to 6%। so you will allow that indexation allowance and your value of the circle rates जो increase हुए हैं, तो उसके बाद जो आप देखेंगे आपकी परचेज कॉस्ट जो है वो around 43 lakhs आ रही है। then you will calculate your gains, that is 50 lakhs minus 43 lakhs। तो आपका गेन एक्चुअली 7 lakh का ही हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आप उस 20 lakhs को किसी और चीज़ में इन्वेस्ट होते तो भी आपकी उसकी वैल्यू इंक्रीज होती विद इन्फ्लेशन, राइट। सो आपको प्रॉपर 30 lakhs जो डिफरेंस है उस पर नहीं पे करना है। जो आपका आज की वैल्यू, उन पैसों की जो आज वैल्यू है और जो आपका सेलिंग प्राइस है उसमें जो डिफरेंस आएगा, दैट इज योर गेन। स्टूडेंट्स, प्लीज कीप इन माइंड यू डोंट हैव टू पे ऑन द ओरिजिनल परचेज कॉस्ट। तो आपका जो गेन टैक्स होगा CGT वो आपके 7 lakhs के गेन्स पे होगा, 7 lakh के प्रॉफिट पे होगा। ठीक है, सो दिस इज दी how you calculate your purchase cost and allow your indexation। indexation is your inflation in the country, fine। and also students, अगर suppose मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपका 2 lakhs का गेन है और 50,000 का लॉस है, तो आपको 1.5 lakhs पे टैक्सेस पे करने हैं। बट कंसिडर द केस वाइस वर्सा, आपका 2 lakhs का लॉसेस है एंड 50,000 का गेन है, देन व्हाट विल यू डू? विल यू पे एनीथिंग टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट विल पे यू एनीथिंग? नो। इन दिस केस you won't pay anything to the government and government would also not pay anything to you। you can just carry on this capital losses in the next financial year। तो आपका जो 1.5 lakhs का कैपिटल लॉस है आप उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपका नेक्स्ट ईयर 2 lakhs का गेन हो जाता है तो आप उसमें से 1.5 lakhs लास्ट ईयर के कैपिटल लॉस को डिडक्ट करके आपका जो कैपिटल गेन है वो 50,000 का होगा। तो दीज आर दी सम रूल्स दैट वी हैव फॉर कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन टैक्स इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। First of all, the formula should be correct to calculate the gains, then any capital losses that can be offset with the gains, then any indexation allowance, the exemption, the exceptions on which there is no capital gains, and then allowances that till that amount if you have gained you won't be taxed anything, but after that जैसे हमने पर्सनल टैक्स में पढ़ा कि इस अमाउंट तक 5 lakhs तक आपको कोई पे नहीं करना है, इसी तरीके से हमारे पास कैपिटल गेन टैक्स के लिए भी अलाउंस होता है कि आपको इस स्लैब तक कुछ पे नहीं करना है, उसके बाद अगर आपका गेन इससे भी ज़्यादा देन यू हैव टू पे। So similarly we have in capital gain tax। So in this way we calculate the capital gain and it is one of the important taxes
इन द केसेस ऑफ प्रॉपर्टी, जस्ट मोस्टली हमारी जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करती है प्रॉपर्टी वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा गेन्स जो होते हैं हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू पे होते हैं, तो देन यू हैव टू पे दी कैपिटल गेन टैक्स देयर। आफ्टर डिस्कसिंग पर्सनल टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स, स्टूडेंट्स ये दो टैक्सेस हैं जो एक इंडिविजुअल खुद से पे करता है अपने अर्निंग्स पे, अपने गेन्स पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कंपनीज़ की। अब कंपनीज़ हमने पढ़ा है कि हमारे पास लिमिटेड कंपनीज, जितनी भी कंपनीज़ हैं जो इनकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, दे पे देयर ओन टैक्सेस, ठीक है। तो उन टैक्सेस को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, द टैक्सेस पेड बाय द कंपनीज और द बिजनेस फर्म्स टू द गवर्नमेंट। तो अब हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्सेस कैसे होते हैं और कैसे ये लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अकाउंट्स के मॉड्यूल पे जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आई एम नॉट गोइंग इन द डीप ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बिकॉज यू कैन रेफर दैट मॉड्यूल फॉर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वहाँ पर आप देखेंगे कि हम एंड में अपना एक कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ, आपका रेवेन्यू, देन कॉस्ट, देन योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आता है उसमें से आपका एनी इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट पे डिडक्ट करते हैं, देन उसमें से आप अपने कोई भी और एनी अदर एक्सपेंसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी कॉस्ट होती है कंपनी को, वो सब डिडक्ट करके आपके पास एक अमाउंट आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो ये अमाउंट आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक अमाउंट मिल जाएगा। अब ये अमाउंट ये है जो कंपनी के, और आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी यू विल गेट दिस प्रॉफिट जो आपको टैक्स से पहले मिल गया है। अब इस प्रॉफिट पे हम लोग क्या करेंगे, वी जस्ट कैलकुलेट द टैक्सेस ऑन दिस प्रॉफिट एंड देन कंपनी विल बी लेफ्ट विथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो हमारे एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में दो कॉलम्स होते हैं लास्ट में स्टूडेंट्स, एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसपे हम टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्लैब, और उसमें उसके बाद टैक्स अमाउंट डिडक्ट करने के बाद वी गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो होता है वो लास्ट प्रॉफिट होता है कंपनी का, प्रॉफिट आफ्टर पेइंग ऑल द लाइबिलिटीज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ हम टैक्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट आर द एग्जेम्पशंस, व्हाट आर द अलाउंसेस एंड व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स डन टू द प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो उसके अंदर आपको सिर्फ दो ही चीज़ें दिखेंगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देन टैक्स अमाउंट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स अमाउंट एंड टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए देयर आर सम एडजस्टमेंट्स दैट नीड टू बी डन टू द प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम और द टैक्सेबल अमाउंट, राइट। तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अभी हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, रेवेन्यू में से जितने भी एक्सपेंडिचर कॉस्ट थी वो डिडक्ट कर दी, बट हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कि डेप्रीसिएशन, आपने एक वर्ड सुना होगा, डेप्रीसिएशन मीन्स जो चार्जेस हम डिडक्ट करते हैं किसी भी वैल्यू, अगर आपकी मशीनरी है, कोई भी एसेट है जिसकी वैल्यू डिक्रीज होती है विद टाइम, तो वो हम वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर देते हैं अपने रेवेन्यू में से भी। बट ये डेप्रीसिएशन इज द चार्ज विच वी हैवंट रियलाइज्ड, मतलब आपने ये लॉस रियलाइज नहीं किया है, जस्ट आप ये कह रहे हैं कि मैंने मशीनरी 1 लाख रुपीज़ की परचेज की थी बट आज उसकी वैल्यू 80,000 है, तो मीन्स आपकी जो 20,000 मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज डिडक्ट कर दिया, बट आपने वो पैसे जो हैं वो आपके रियलाइज नहीं हुए, आपने वो मशीनरी सेल नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड बैक एनी डेप्रीसिएशन चार्ज। तो जितना भी डेप्रीसिएशन चार्ज एक कंपनी अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में डिडक्ट करती है वो आपको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ऐड बैक करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। देन एनी अदर एक्सपेंडिचर जो आप ऑलरेडी एक लीगल उसमें कंपनी या फिर एंटरटेनमेंट के लिए, या आपने कंपनी ने कोई लीगल फाइन पे किया है या कोई चार्जेस दिए हैं गवर्नमेंट को, तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स जो कंपनी डिडक्ट कर चुकी है वो आपको ऐड बैक करने होंगे अपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, ठीक है। सो दीज आर दी एडजस्टमेंट्स जो आपको करनी होती हैं टू कैलकुलेट दी टैक्सेबल प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा R&D कॉस्ट। व्हाट इज R&D कॉस्ट? इट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अगर कोई भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए
स्पेंड करती है, कॉस्ट इनकर करती है, तो वो पूरा एक्सपेंडिचर जो है वो आप डिडक्ट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट में से, ठीक है। तो मीन्स अगर आप रिसर्च कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, डेवलपमेंट कुछ आई है जिसके लिए आपकी कॉस्ट इनकर हुई है, तो यू कैन डिडक्ट दैट कॉस्ट फ्रॉम योर कंपनी। तो these are the three main adjustments that need to be done to calculate the taxable profits. So one was to deduct any charges like entertainment charges, legal fines, legal charges that the company has paid, to add back those expenses. Then you have to add back any depreciation charge from the profits, and then you have to deduct any research and development cost, any other costs that have been incurred to develop the company, right? So these are the three adjustments. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने इनकम और कैपिटल गेंस दोनों पे ही टैक्स पे करते हैं। सिमिलरली कंपनीज भी अपनी इनकम माइनस देयर अलाउएबल एक्सपेंसेस एंड देयर कैपिटल गेंस दोनों पे ही टैक्सेस पे करती है। अब हम बात करेंगे कंपनीज के कैपिटल गेन पे। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मीन्स जब आप कंपनी के एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, अपने किसी गेन को रियलाइज करते हैं, तो उस पे भी कंपनी को टैक्स पे करना होगा। तो सिमिलरली जैसे एक इंडिविजुअल के पास कैपिटल गेन्स होते हैं, ऐसे कंपनी के भी कैपिटल गेन्स होते हैं। अगर आप शेयर सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर गेन हुआ है कैपिटल में, तो देन यू हैव कंपनी ऑल्सो हैज़ टू पे द कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द income tax and the capital gain tax for the company, so that is the company's taxable income. तो अभी हमने देखा कि कैसे प्रॉफिट जो हम अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से लेते हैं, वहाँ से प्रॉफिट लेके उसको एडजस्ट करते हैं ड्यू टू सम फैक्टर्स। सो सम रिलीफ फंड्स जो कंपनी देती है तो उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, R&D कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को डिडक्ट कर देते हैं और ऐड बैक कर देते हैं एनी एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल जो एंटरटेनमेंट कॉस्ट है, हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज है, लीगल फाइन्स है, उन सबको ऐड करके हमारे पास एक प्रॉफिट आता है जिसपे हम टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं। सो एंड स्टूडेंट्स, सिमिलरली जैसे हमारे पास पर्सनल टैक्स में स्लैब्स होते हैं कि आपको 5 to 7.5 लाख में आपको 10% टैक्स रेट देना होगा, देन 7.5 लाख से 10 लाख तक आपको 15% टैक्स रेट देना होगा। सिमिलरली हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्सेस में भी रेट स्लैब होते हैं। यहाँ अगर आप इफ़ यू आर अर्निंग मोर देन 10 lakhs देन यू हैव टू पे दैट 20%। तो लाइक दिस यू हैव दी tax rates for different slabs of the profit. Okay, so the next thing comes students कि कैसे गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है इन टैक्स स्लैब्स को, ठीक है। तो अभी हमने देखा था पर्सनल टैक्स में हम गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम सिर्फ कैश फ्लोज को ही कंसीडर करेंगे या फिर हम एरियर्स में लेंगे सो दैट पीपल सिटीजन्स कैन स्पेंड ऑन देयर बेसिक एंड एसेंशियल नीड्स। तो कंपनीज के केस में हाउ गवर्नमेंट रेगुलेट द कंपनीज with the help of taxation. ओके, सो अभी मैंने आपको स्टूडेंट्स बोला कि हम जो R&D कॉस्ट होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, वो हम डिडक्ट कर देते हैं अपने प्रॉफिट्स में से। वाई? और अगर हम डिडक्ट नहीं करेंगे तो क्या कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करेंगी? नो। तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट्स रेगुलेट दिस कॉर्पोरेट टैक्स सिस्टम एंड गवर्नमेंट रेगुलेट्स इनडायरेक्टली द कंपनीज। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, हम उस कॉस्ट पे आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो इन ऑर्डर टू सेव द टैक्स, गवर्नमेंट्स कंपनीज व्हाट दे डू स्पेंड मोर एंड मोर एज मच एज पॉसिबल ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इससे क्या होगा, व्हाट इज द एम बिहाइंड दिस? गवर्नमेंट क्यों ऐसा किया गवर्नमेंट ने? बिकॉज दे वांट द कंपनीज टू डेवलप। अगर कंपनीज डेवलप करेंगी तो एम्प्लॉयज डेवलप करेंगे, न्यू रिसर्च होगी, न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे एंड ओवरऑल कंट्री ग्रो करेगी, कंट्री डेवलप करेगी, ठीक है। तो द एम, द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज दिस। एंड कंपनीज क्यों स्पेंड करें? अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम आपसे टैक्सेस हर उस पर लेंगे, तो कंपनीज जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना इन्वेस्ट या उतना कॉस्ट इनकर नहीं करेंगी एज कम्पेयर टू दिस। व्हेन दे आर टोल्ड देन देयर वुड बी नो टैक्सेस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। सो दिस इज हाउ एक रूल और एक अलाउंसेस कैसे किसी भी चीज़ एक्टिविटी को कंट्री के अंदर इनकरेज या डिस्करेज कर सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि पेंशन फंड्स हैं,
वहाँ पर आप अगर अपनी पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपके जो है वो टैक्सेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब पेंशन फंड्स कंपनी, आपका पीएफ आपने सुना होगा कि एम्प्लॉयर भी देता है एंड एम्प्लॉय भी देता है, तो एम्प्लॉयर क्यों देगा? बिकॉज government has asked companies, if you are contributing for the employees pension fund or the provident fund, then आपका टैक्स डिडक्ट होगा, हम उस पर आपका टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द corporate governments can use this corporate system to discourage or encourage any activity. तो आप गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है इसके पीछे? दैट आफ्टर रिटायरमेंट कोई भी सिटीजन जो है वो ऐसा ना हो कि उसके पास खाने के लिए पैसे, दे आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम दी गवर्नमेंट, दे आर गेटिंग देयर प्रोविडेंट फंड, दे आर गेटिंग देयर पेंशंस। अगर हम लोग अभी से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें आफ्टर 60 हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, बट अभी हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके वी कैन सेव फॉर आवर रिटायरमेंट, right? But after retirement we don't have any work from where we will fulfill our basic needs. So this is how the government has encouraged this activity by not levying the taxes on these types of expenditure. तो ये एक गवर्नमेंट का सिस्टम है स्टूडेंट्स कि कैसे किसी भी एक्टिविटी को इनकरेज या डिस्करेज किया जा सकता है। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द बजट्स, जब भी एक बजट आता है तो सिगरेट्स और तंबाकू मीन्स इन सब आइटम्स पर हर बार टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। वाई? सो दैट टू डिस्करेज द यूजेस ऑफ टबैको एंड सिगरेट्स इन द कंट्री। आप बैन नहीं कर सकते, बट यू कैन लिवाई मोर एंड मोर टैक्सेस सो दैट citizens and individuals won't go to purchase that, ठीक है। So this is how the governments play a major role in the country indirectly or directly. Students, अभी तक हमने देखा कि what is corporate tax, how companies pay the corporate tax to the government, how they actually calculate the their taxable income, their profits from the companies, and what adjustment need to be done, and how the government play a role by discouraging or encouraging any activity in the corporate system and in the country. Hope you learned what is being discussed in this module about the corporate tax system. Thank you students, stay safe.